Good morning, students. Today, exercise year 5.4 NCERT books. In this exercise, you have derivative of exponential functions as well as logarithmic functions. Exponential functions means f of x is equal to a raised to power x. Then its derivative is a raised to power x into log of a base e. Second, f of x, this is also called exponential functions. In this case, derivative is e raised to power x log of e base e, which is only e raised to power x. Third, fx is equal to log x base e and its derivative is 1 by x. Now in case of log, when base is not mentioned, then e is understood. E is an exponential, has its finite values, but when base is not mentioned, you will treat e as your constants. But if you have other than base e, then you will use base change properties. For example, if you have x log of x base a, first you will write here log of x divided by log of a. Now you will take derivative 1 by log of a base e is understood and the derivative of 1 by log of this is 1 by x. So this is the revision of the formulas, and this I have discussed in my first videos, derivative by direct methods. Questions are very simple. Question number 1, exercise 5.4, headings and differentiate with respect to x. F of x is e raised to power x divided by sine x. Its derivative, you will use the quotient rule, sine square x, sine x as it is, derivative of e raised to power x minus e raised to power x as it is, derivative of sine x. क्वेश्चन रूल तो आपको इसमें लगाना ही होगा. डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स इज ई रेज टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स, इट्स डेरिवेटिव इज कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स. So this is all about your question number 1. Further, if you want, you may write one more step to simplify, otherwise you may leave here. It is all up to you. You may take e raised to power x commons divided by sine square x. Question number 2, let f of x is e raised to power sine inverse x. What is its derivative? First we will take e raised to power x as it is. Further, by chain rule, derivative of sine inverse x. So this is e raised to power sine inverse x divided by under root of 1 minus x square. This is the derivative of sine inverse x. Means एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में भी पहले आप e रेज टू पावर x का लेंगे, फिर जो पावर x है उसका डेरिवेटिव लेंगे. यहाँ 1 होता है, हमने नहीं लिया है, साइन इनवर्स x था, तो आपको लेना है. क्वेश्चन नंबर 3,
एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स क्यूब. What is f dash x? E raised to power x cube as it is into derivative of x cube, which will be equal to 3x square into e raised to power x cube. Let us take question number 4. Let f of x is equal to sine of tan inverse e raised to power minus x. Its derivative, first you will take derivative of sine cos, angle will remain same. Then you will take derivative of tan inverse e की power minus x. So this is cos of tan inverse e की power minus x अपॉन टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव का होल स्क्वायर. आगे डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर माइनस एक्स. तो नेक्स्ट इज कॉस टैन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स इंटू 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x इंटू ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स. तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस टैन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड. दिस इज योर फाइनल आंसर. दिस इज चेन रूल्स. एक बार दोबारा देख लीजिए इस सम को. पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, साइन का डेरिवेटिव कॉस. आपको अपनी नज़र यहीं पे रखनी है, यहाँ से आपको आइडिया लगेगा. मुझे यहाँ देख के लग रहा था कि पहले साइन का कॉस, फिर मैंने टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव लिख दिया. फिर टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव का जो फार्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसको लिखा गया. फिर डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर माइनस एक्स, फिर डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स. दिस इज नॉन एज चेन रूल. 4 डेरिवेटिव्स हैं. ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आसानी से कवर्ड हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 5. एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस ई रेज टू पावर एक्स. अब आप यहाँ देखिए बेस मेंशन नहीं है तो हम बेस ई लेके चलेंगे. तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 बाई एक्स है, तो 1 बाय कॉस ई रेज टू पावर एक्स. आगे डेरिवेटिव ऑफ कॉस ई रेज टू पावर एक्स. दिस इज 1 बाय कॉस ई रेज टू पावर एक्स माइनस साइन ई रेज टू पावर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स. तो फाइनल आंसर इज ई रेज टू पावर एक्स. माइनस साइन बाहर रख सकते हैं. साइन अपॉन कॉस को हम टेंजेंट भी बना सकते हैं. This is final answer. Question number 6. एफ एक्स इज इक्वल टू e raised to power x plus e raised to power x square and so on plus e raised to power x raised to power 5. f dash x e raised to power x, x का डेरिवेटिव 1 लिखने की जरूरत नहीं है, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर लिख सकते हैं. अंडरस्टूड है कि अगला एक्स क्यूब होगा तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब लिख सकते हैं. एंड सो ऑन e की पावर x रेज टू पावर 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 5. ये पॉइंट नोट कर लेना.
मतलब e की पावर x का पहले डेरिवेटिव एज इट इज होता है, जो ऊपर फंक्शन दिया होता है चेन रूल में हमने उसका डेरिवेटिव लेना होता है. यू हैव टू टेक केयर ऑल दीज पॉइंट्स. दिस इज e रेज टू पावर x, दिस इज 2x इंटू e की पावर x स्क्वायर, दिस इज 3x स्क्वायर इंटू e की पावर x क्यूब, दिस इज 5 इंटू x रेज टू पावर 4 इंटू e की पावर x5. सॉरी, आई शुड पुट ए सो ऑन, या एक ही टर्म्स रहेगी, आप चाहें तो वो लिख भी सकते हैं. इफ आई राइट द टर्म्स हेयर, व्हाट आई शुड राइट, 4x क्यूब इंटू e की पावर x4. Because only one term is missing, so I have written it. So this is your question number 6. Question number 6. Question number 7. fx is equal to under root of e raised to power under root of x. देखिए, इस क्वेश्चन में पहले आप इस अंडर रूट का डेरिवेटिव लेंगे, इस वाले का, जो अंडर रूट का डेरिवेटिव ये होता है. फिर आगे लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर अंडर रूट एक्स. बिकॉज जब आप अंडर रूट का डेरिवेटिव लेंगे, ये मैं साइड में एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो हम 1/2 एक्स की पावर -1/2 लिखते हैं. ये बेचा याद रख लेगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बहुत यूज़ होता है. तो पहली स्टेप्स तो क्लियर हो गया. दूसरे स्टेप में ई की पावर एक्स का सेम रहता है, फिर डेरिवेटिव और रूट एक्स लेना होता है. तो 1/2 अंडर रूट ऑफ ई की पावर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स इंटू ई की पावर रूट एक्स. ये टर्म मैंने पहले लिख दी और ये बाद में. तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 8. In question number 8, you have statements fx is equal to log of log x. बेस ई है, मेंशंस नहीं है तो ई लेते हैं हम लोग. फर्स्ट हम जब डेरिवेटिव लेंगे तो देखिए, हम पहले इस लॉग का डेरिवेटिव लेंगे. इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/log x, बिकॉज x तो ये है. आगे फिर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे log ऑफ log x का. ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा. अब स्टूडेंट्स को मेनली डाउट इसमें, कई बार बच्चे प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं. प्रोडक्ट रूल में 2x होने चाहिए. ये बच्चों की बड़ी अजीब सी प्रॉब्लम रहती हैं, तो इनको आपको प्रैक्टिस करना ही होगा. fx इज इक्वल टू cos x डिवाइडेड बाय log x. अगर हम f' लेंगे तो हम यहाँ पे log ऑफ x का होल स्क्वायर करेंगे, तो क्वोशंट रूल. तो log x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x, माइनस cos x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x. तो दिस इज योर फाइनल आंसर. sin x log x, x भी ले लेते हैं एलसीएम के साथ, माइनस cos x ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय x log x का होल स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 10. fx is equal to cos of log x plus e raised to power x
If you take its derivative of cos x is minus sin log x plus e raised to power x as it is into derivative of log x plus e raised to power x as it is minus sin log of x plus e raised to power x into log x का डेरिवेटिव 1 by x plus e raised to power x. This is your answer. This is your question number 10 and exercise 5.4. Few examples are there that you will try of your own. Next, let us today consider one more concept, that is in exercise 5.5. Exercise 5.5 first questions, let y is equal to cos x into cos 2x into cos 3x. cos x into cos 2x into cos 3x, तीन टर्म्स आपस में मल्टीप्लाइड है. हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये लेते हैं, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो नॉर्मली हम पुट करते हैं लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड का ये मतलब. फिर हम लॉग की एक प्रॉपर्टीज होती है जिसको हमने लॉग में डेरिवेटिव बाय डायरेक्ट मेथड की वीडियोस में आपको कराया था. लॉग ऑफ m इंटू एन इज लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n. इट मीन जितने भी ये मल्टीप्लाइड साइंस हैं सब प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे. क्वेश्चन को आसान करने का हमारे पास ये बेस्ट तरीका है. अब हम यहाँ पे डेरिवेटिव ले सकते हैं डिफरेंशिएशंस विद रिस्पेक्ट टू x. log y का डेरिवेटिव 1 by y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इम्प्लिसिट फंक्शन वाली कंडीशंस, चेन रूल. log y 1 by y, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x of the dy by dx. log of cos x का डेरिवेटिव 1 by cos x into minus sin x, because by chain rule the derivative of cos x is 1 by cos 2x by chain rule minus sin 2x, आगे फिर 2x का डेरिवेटिव इंटू 2. अब हमें ये डायरेक्ट लिखने पड़ेंगे. अगर हम इनको लेंथी स्टेप्स में लिखते रहेंगे सम बहुत लेंथी हो जाएंगे. वी हैव टू फिनिश इट इन दैट वे. अलग अलग ब्रैकेट्स में लिखना शुरू कर दीजिए. cos ऑफ 3x, फिर ये डेरिवेटिव cos का और ये डेरिवेटिव 3x का. अब फाइनल आंसर आपने कैसे कंक्लूड करना वो देखिए. यू विल राइट डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि यही आपको निकालना है. y आप इधर शिफ्ट कर देंगे. व्हाट इज y? cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x. दिस विल बी रिटन एज माइनस टेंजेंट x. दिस विल बी रिटन एज माइनस 2 टेंजेंट 2x. दिस इज माइनस 3 टेंजेंट 3x. so this is your final answer. दोबारा देख लीजिए. जब बहुत ज़्यादा बड़ा सम्स हो जिसमें प्रोडक्ट के साइंस हैं, मल्टीप्लाइड है या डिवाइड के साइन है, उसमें नॉर्मली हम पहला स्टेप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले लेते हैं.
ये पहला सम है, लेकिन आपको ऐसे बहुत सारे सम मिलेंगे जिसमें लॉग ऑन बोथ साइड आपको लेना है। तो पहले मैंने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। फिर मैंने लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, मल्टीप्लाइड साइन प्रोडक्ट में चेंज कर दिए गए हैं। देन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, मैंने आपको कहा कि log y का डेरिवेटिव 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, log cos x का डेरिवेटिव 1/cos x, आगे cos का बाय चेन रूल। चेन रूल साथ साथ लगाना, नहीं तो सम लेंथी हो जाएंगे। आपको इस तरीके से ही ये सम करना है। लेट अस टेक वन मोर सम, दैट इज योर सेकंड क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज योर 5.5। Let I am taking second questions, y is equal to अंडर रूट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, ये समझाते हैं, सिर्फ आपको रूल्स याद रखना है। स्टेटमेंट में वेरी x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। देखिए बीच में प्रोडक्ट भी है, मल्टीप्लाई डिवाइड भी है, दो टर्म्स प्रोडक्ट हैं, फिर डिवाइड और अंडर रूट भी है। इसमें लॉग की तीनों प्रॉपर्टीज यूज हो जाएंगी, ऑल द थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। मीन्स लॉग ऑफ m रेज टू पावर n हम यूज कर लेंगे, n इंटू लॉग m। हम लॉग ऑफ m डिवाइडेड बाय n यूज कर लेंगे, लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। हम लॉग ऑफ m इंटू n यूज कर लेंगे यहाँ पे, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। बेस मैं नहीं लिख रहा हूँ, बेस ही अंडरस्टूड है। मैं स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दिस implies log of y is equal to log of x minus 1 into x minus 2 upon x minus 3 into x minus 4 into x minus 5 raised to power 1/2. This 1/2 first property, second property is x minus 1, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी लॉग ऑफ x माइनस 2, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी लॉग ऑफ x माइनस 3, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी लॉग ऑफ x माइनस 4, फिर माइनस x माइनस 5। ये आपका लॉग का एडवांटेज है। पेपर्स में सम ऐसे नहीं आएगा कि टेकिंग आप लॉग से इसको करिए, पेपर में तो आएगा डिफरेंशिएट दिस। वो हमें डिसाइड करना होता है कि कौन से स्टेप से ये क्वेश्चन ईजी रहेगा। इसलिए मैंने कहा था कि आप बार बार लॉग की प्रैक्टिस करते रहिए। नॉर्मली टॉपिक इजी होता है, बट स्टूडेंट्स को डर लगता है बिकॉज प्रैक्टिस की थोड़ी कमी रहती है। लॉग ऑफ वाई का अब मैं लिखूंगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नेक्स्ट स्टेप इज डिफरेंशिएशंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दिस इंप्लाइज what is that log y? 1/y into dy by dx, 1/2 as it is। log of this derivative is x minus 1, by chain rule x minus 1 का डेरिवेटिव 1 होगा, 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। ये सब मैं डेरिवेटिव्स ले रहा हूँ, चेन रूल नहीं लगेगा बिकॉज अगला डेरिवेटिव 1 होगा। फाइनल आंसर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। y को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आएंगे, एंड व्हाट इज योर y, ऊपर से फ्रॉम फर्स्ट से उसकी वैल्यू पिकअप कर लीजिए।
ये क्वेश्चन आगे एलसीएम लेके सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। जो मैं आपको स्टेप्स दे रहा हूँ कंप्लीट ही दे रहा हूँ, आप यहीं पे सम को आगे छोड़ सकते हैं। ये आपका फाइनल आंसर है। देखिए, मैंने आपको कहा कि बस लॉग की प्रॉपर्टीज़ ध्यान में रखनी थी, लॉग के अपने स्टेप्स लगा दिए, उस तरीके से आपका ये सम हो गया। अब आगे मैं ये चाहता हूँ कि आप कुछ होमवर्क नोट कर लीजिए। 5.5 एक्सरसाइज में आप एग्जाम्पल नंबर 30 खुद करेंगे और आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, और 5.4 के सारे एग्जाम्पल्स करने हैं। 5.5 में सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 30 करना है, बाकी के एग्जाम्पल आपसे अभी नहीं होंगे, वो हम कल की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और 5.5 में आगे की एक्सरसाइज भी अभी आपको नहीं करनी है। आपको जितना आज आपको ये 2 सम्स दिए गए हैं, 2 लॉग के ऊपर दिए गए हैं, और बाकी के सम्स हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।